انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان اپنی سرزمین پر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا اعلان جنگ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک خصوصاً افغانستان کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا اور اس دوران قبائلی عمائدین کے جرگے سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاک افغان سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے جاری انسداد دہشت گردی کی رکاوٹوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس کے علاوہ پشاور کور ہیڈ کوارٹرز میں فیلڈ مارشل کو خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے قبائلی عوام کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا اور حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون پر قبائلی عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے بہادر عوام کی قربانیوں اور عزم کو سراہا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گی۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک خصوصاً افغانستان کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفارتی اور معاشی اقدامات کیے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ افغان طالبان حکومت نے بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردوں گروہوں کے خلاف کارروائی کی بجائے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق قبائلی عمائدین نے آرمی چیف کے واضح موقف کو سراہا اور یقین دلایا کہ خیبر پختونخوا کے عوام امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فتنہ خوارج کی گمراہ کن سوچ کو قبائل میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں۔ ISPR کے مطابق قبائلی عمائدین نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی مکمل حمایت کی عزم کا اعادہ کیا اور افغان طالبان کے خلاف بھی واضح موقف اختیار کیا ہے۔ چین اور امریکہ کو بدلہ لینے کے خطرناک چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چینی صدر کا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد بڑا بیان۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ کو بدلہ لینے کے خطرناک چکر میں پڑنا نہیں چاہیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر سے ملاقات کے بعد گفتگو میں چین کے صدر نے کہا ہے کہ چین کی معیشت ایک سمندر کی طرح ہے۔ چین ہر قسم کے خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم چین کبھی بھی کسی ملک کو چیلنج کرنے یا اس کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنے کام کو بہتر کرنے پر توجہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت محاذ رائی سے بہتر ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات مجموعی طور پر مستحکم ہیں۔ چین اور امریکہ دونوں کی ٹیموں کو بات چیت پر فالو اپ کرنا چاہیے، جبکہ چین اور امریکہ کے تعلقات کو وسعت دینے کے لیے تجارت اور معیشت کو بنیادی عنصر ہونا چاہیے۔ چینی صدر نے مزید کہا کہ تجارتی تعلقات کو چین امریکہ دوستی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ دونوں ممالک کو تعاون کے طویل المدتی مفاد پر نظر رکھنی چاہیے اور بدلہ لینے کے خطرناک چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین اور امریکہ کی اقتصادی تجارتی ٹیموں نے تفصیلاً گفتگو کی اور مسائل کے حل پر اتفاق کیا۔ غیر قانونی امیگریشن روکنے پر دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے مثبت رجحانات ہیں، جبکہ دونوں ممالک ٹیلی کام فراڈ، منی لانڈرنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری جانب چینی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی اور چینی صدور نے توانائی تجارت میں تعاون کو مضبوط بنانے اور بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا ہے۔
अमेरिका ने भारत को चाबहार मंसूबे पर पाबंदियों में 6 माह रियायत दे दी। अमेरिका ने भारत को चाबहार मंसूबे पर पाबंदियों में 6 माह रियायत दे दी। मंसूबा अफगानिस्तान तक भारतीय रसाई का अहम रास्ता, ईरान के साथ 10 साला मुआहिदा गुज़िश्ता बरस हुआ था। अमेरिका ने भारत को ईरान में वाक़े इसकी स्ट्रेटेजिक चाबहार बंदरगाह मंसूबे पर आयद पाबंदियों से 6 माह की रियायत दे दी है, जिससे अफगानिस्तान तक ज़मीनी रसाई के लिए एक मुतबादिल रास्ता समझा जाता था। कहा जा रहा है कि पहले अमेरिका ने इस पर सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाई थी कि अगर ईरान से किसी भी किस्म की भारत ने तिजारत की तो भारत को सख्त तरीन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान बहरिया समंदरी सरहदों के हर इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का बयान। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने रवायती और गैर रवायती बहरी चैलेंजेस से निपटने के लिए जंगी तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। फोरम में ऑपरेशनल तैयारी, जारी मंसूबों और आइंदा सरगर्मियों का तफसीलन जायजा लिया गया, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और इनकाद पर गौर किया गया। पाकिस्तान बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस के दौरान नेवल चीफ ने रवायती और गैर रवायती बहरी चैलेंजेस से निपटने के लिए जंगी तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस के खिताब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी सरहदों के हर इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ISPR के मुताबिक कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान बहरिया का आला फैसला साज फोरम है, जिसमें नेवल चीफ, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फील्ड कमांडर स्ट्रेटेजिक तरजीहात पर गौर करते हैं। मॉस्को और पाकिस्तान का बड़ा मुआहिदा। रूस ने मॉस्को में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सफारतखाना तामीर करने की मंजूरी दे दी। पूरे भारत में हलचल। रूसी हुकूमत ने मॉस्को में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े एम्बेसी कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए इसकी मंजूरी दे दी है। ये इक़दाम दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अलामत करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि नई एम्बेसी न सिर्फ सफ़ारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देगी, बल्कि दो तरफ़ा ताउन, तिजारत और सकाफ़ती रवाबित को भी मजबूत करेगी। इससे मॉस्को में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए सहूलतें बढ़ाने में मदद मिलेगी। माहिरीन का मज़ीद ख्याल है कि ये इक़दाम ख़ित्ते में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में एतमाद, देर पा ताउन का मज़हर है और मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा मुआहिदों और प्रोजेक्ट्स में इजाफ़ी तवक्को है। चीन का JGJ-X स्टेल्थ ड्रोन बहरुल काहिर में अमेरिका के लिए खतरे की अलामत बन गया। चीन के JGJ-X स्टेल्थ ड्रोन ने अभी भी उड़ान भरी है और इसके साथ इसके बगैर पलट के अज़ाइम पैसिफिक पावर गेम में बढ़ रहे हैं। TWZ की चीन ने इतला दी है कि इस माह दी वारफेयर जोन का जदीद तरीन स्टेल्थ ड्रोन, जिसे गैर सरकारी तौर पर JGJ-X का नाम दिया गया है, पहली बार परवाज में देखा गया है। हवाई जहाज जिसकी खसूसियत इसके बड़े पैमाने पर क्रैंक्ड काइट फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है। इब्तदाई तौर पर सितंबर में सेंगियांग सूबे में मालान के करीब चीन की आजमाइशी अड्डे से सैटेलाइट तस्वीर सामने आई थी। तकरीबन 42 मीटर पर मुहित होने का तखमीना लगाया गया है। JGJ-X का ताल्लुक बड़े गैर साख्ता स्टेल्थ फॉर्म प्लेटफॉर्म्स की एक नादिर क्लास से है। नई मंजर आम पर आने वाली फोटेज में इस तरह का तरतीब शुदा ड्रोन हवाई जहाज़ दिखाया गया है, जिसमें स्पिल्ट रेडार्स और मुमकिना तौर पर जुड़वा इंजन का सेटअप दिखाया गया है, जिसमें काउंटर शेड एंडर साइड पेंट स्कीम को ऊंचाई पर इसकी शक्ल को गैर वाज़ेह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तज्ज़ियाकार इसके मतलूबा किरदार पर मुनकसिब रहते हैं और बहस कर रहे हैं कि आया ये अमेरिकी RQ-180 बगैर पायलट के लड़ाका हवाई गाड़ी UCAV या स्टेल्थ बम्बार की तरह एक तवील फासले तक जासूसी के प्लेटफॉर्म्स के तौर पर काम करता है। ड्रोन का ज़हूर चीनी स्टेल्थ तैयारों के निशनुमा में इजाफे के बाद हुआ है, जिसमें J-36 और JXD टेल लेस फाइटर शामिल हैं, जो जदीद फ़ज़ाई फ़्लाइटों में चीन की तेज़ रफ्तार पेशरफ की निशानदही करते हैं। कहा जा रहा है कि अगर चीन ने RQ-180 US ड्रोन शरह लिया तो इसका ये बहुत बड़ा ड्रोन के तौर पर तस्वुर किया जा रहा है।
पाकिस्तान के नए होवरक्राफ्ट ने साहिली दिफा में रफ्तार और रसाई की नई बुलंदियों को छुआ है। 26 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रिक्स एरिया में फॉरवर्ड पोस्टों पर जंगी तैयारियों का जायजा लिया, जहां 3 TD-2400 होवरक्राफ्ट को बाकायदा पाकिस्तान नेवी के तौर पर पाकिस्तानी मेरीन्स में शामिल किया गया। ये पेशरफ्त उन शेयर की जाने वाली ऑफिशियल चैलेंजेस की जानिब से खित्तों में साहिली सलाहियतों को जदीद बनाने के लिए जोर देती है। ये साहिली सलामती और जहाँ रवायती कश्तियाँ जदीद करती हैं, मुल्क के मैंग्रोव जुड़ी रास्तों और समंदरी फ्लैटों के साथ MBS नकलो हरकत के लिए मुतलका है, जहाँ तेज़ी से इंदराज और निकालना अमली तौर पर फैसला कौन है। ये एक बरतानवी इंजीनियर्ड होवरक्राफ्ट क्लास है जिसे 2400 TD ने तैयार किया है, जिसका मकसद पानियों, मट्टी के फ्लैटों, स्टैंड बार्स और दलदल को एक एयर कुशन पर ग्लाइड करने के लिए बनाया गया है, जो ड्राफ्ट और वीक को नुमायां तौर पर कम करता है। पाकिस्तान के लिए यह प्लेटफॉर्म एक मुस्तकिल ऑपरेशनल चैलेंजेस के लिए मौजू हल पेश करते हैं। गश्त को बरकरार रखना, रोकथाम करना, लॉजिस्टिक की मदद करना और सरकरीक के इलाके में और उसके आसपास के साहिली इलाकों में जानी नुकसान के खिलाफ को काबिल बनाना, और जहां चैनल्स की तब्दीली और गैर मुस्तहकम खित्ता मामूल के मुताबिक रवायती हिलों की राह में रुकावट है। इंडक्शन बहरा के मवासलात की समंदरी लाइनों की हिफाजत और साहिली दिफाई पोजीशन को मजबूत बनाने पर जोर देने के साथ साथ मुताबिक रखता है, जबकि मेरीन्स को इंडस डेल्टा की जियोमेट्री और हाइड्रोलॉजी के मुताबिक एक टूल सेट भी फराहम करता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने मगरबी किनारे को जम करने का इजरायली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर समेत 15 ममालिक ने इजरायली पार्लियामेंट की जानिब से मगरबी किनारे के इंजमाम से मुतल्लिक बिलों की मंजूरी आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। मतन में कहा गया है कि इजरायली पार्लियामेंट की जानिब से मगरबी किनारे के इंजमाम से मुतल्लिक 2 बिलों की मंजूरी आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मगरबी किनारे में खुद साख्ता खुद मुख्तारी का इजरायली इकदाम गैर कानूनी किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। मुश्तरका एलामिया में आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत का अदा करते हुए मुतालबा किया गया है कि आलमी बरादरी सिहोनी रियासत को इश्तियाल अंगेजी से रोके। आलमी अदालत इंसाफ ने इजरायली बस्तियों के तामीर को लदम करार दिया है। मुश्तरका एलामिया में आलमी अदालत इंसाफ की 22 अक्टूबर को मुशावरती राय का भी खैर मकदम किया जा रहा है।